Yes. So here sour is for acid and bitter is for the base. तो यहाँ पे यहाँ क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ द एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग सम ऑफ द फॉलोइंग। ओवर ईटिंग के बाद एसिडिटी हो जाता है, डकार आने लगता है, गैस जैसा होने लगता है और वोमिटिंग जैसा होने लगता है। तो एसिड के पहला तो मेरा क्वेश्चन है, पेट में दर्द भी होता है, स्टोमक में एक पेन भी होता है। तो पेन क्यों होता है, मैं उस चीज पे यहाँ पर बात करता हूँ। एसिड जैसे पिछले क्लास में भी बात हुई थी कि एसिड करता क्या है। एसिड एक तरीके का इरिटेशन करता है। एसिड एक तरीके का आपको स्किन को, पेट में, और वो एक्स्ट्रा गैस प्रोड्यूस करता है, तो जिससे एक जो स्टोमक का एरिया है वो थोड़ा फूलने लगता है, तो वहां पे एक स्ट्रेचिंग की वजह से दर्द हो सकता है। और एसिड अपने आप में एक इतना खतरनाक चीज है, डेंजरस चीज है। आप सुनते हैं कि अगर एसिड पड़ जाए स्किन पे तो जल सकता है। वो पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो लेकिन वो उतना हाईली वो वाली एसिड नहीं होती, बट वो एसिड इरिटेशन करता है। तो यहाँ पे कहा लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा में क्या सजेस्ट करते हैं, तो हम बेकिंग सोडा सजेस्ट करते हैं। क्यों सजेस्ट करते हैं, मैं ऐसे टॉपिक बाद में आना है, मैं फिर भी क्लियर कर देता हूं। ये सजेस्ट इसीलिए करते हैं, लिसन, ये इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि एसिड का इफेक्ट को खत्म करना है, एसिड का इफेक्ट को खत्म करना। हाउ वी रिमूव द इफेक्ट ऑफ एसिड, हाउ वी न्यूट्रलाइज इट। देयर इज ए रूल when acid plus base equal to salt plus water. You have already studied in yesterday previous class, isn't it? So when salt is neutral, what you know, the pH value of salt is 7 and it is good or okay for our body. If pH value becomes less than 7, it starts irritating or itching in our the body, pain or problem. So body value of pH value, pH is the potential, is the power of the liquid. So that is the potential of the power of the liquid becomes less than 7. So it is, you can say, harmful for the body. And if it is 7 or more than 7, 7.8, it is normal, we get comfortable. So to neutralize acidic effect, we eat or take baking soda so that they neutralize the effect of acid over acid. Clear? Neutralize the effect of baking. Yes. So one thing I want to know that whatever I have told you, whatever I have explained here, you should again explain. Repeat it in your own word. Okay, so acids cause irritation and they need to be neutralized. I mean, when we want to remove that irritation from, let's say, overeating, we use a base to neutralize them, which is baking soda. Okay. Next one. Which property do you think of the while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability to acid or base to nullify each other's effect. Already I have discovered nullify each other effects. Normally we use the medicine, that medicine contains antacid, that is called antacid. It is clear from its name, antacid means anti of acid. Right. Anti of acid means that is anti-acid, normally diazine and some another name of the medicine maybe, but that contains base. Right. Recall how we tested sour and bitter substance without tasting them. Recall how we tested sour and bitter substance without tasting them. अब ये कोई और भी पॉइंट लिख दिया इन्होंने, मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता राइट नाउ. यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर शावर इन द टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ blue litmus to red, whereas bases are bitter and changes color of red litmus to blue. So here and litmus is a natural indicator and turmeric is another such a indicator. So here the main important point that we have to notice is that acid are sour in taste and change the color of blue litmus into red. Change the color of blue litmus into red, while bases are bitter and change the color of red litmus to blue. And litmus is a natural indicator and another indicator is turmeric. Right. Turmeric.
Another thing, have you noticed that a stain of curry on white cloth becomes reddish brown when soaked, which is basic in nature and is scrubbed on it? तो क्या कहता है कि कोई जो करी, इट मीन्स जो हम सब्जी की कोई चीजें करी होती है, अगर वो व्हाइट क्लॉथ पे पड़ जाता है तो उसका कलर रेडिश हो जाता है। कहता है वो बेसिक इन नेचर होता है, दैट्स व्हाई इट अगेन Right. इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन क्लॉथ इज वॉश्ड विथ ए प्लेंटी ऑफ वाटर। तो फिर कहता है येलो हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फथेलिन टू टेस्ट एसिड और बेस। तो इंडिकेटर क्या है कि इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस, अगेन इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस, indicator are those substance which changes color when acid or base it is mixed with acid or base, and when they are in contact with acid and base। मैं एक बार उस टॉपिक को अगेन वापस लेता हूं। A stain of curry on white clam becomes reddish or brown when soaked, which is in basic in nature, is scrubbed on it। देखिए यहाँ पे करी, करी contains turmeric, isn't it? हाँ, तो वो होता है। और यहाँ पे जो सोप है हम यूज करते हैं, सोप वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो उसको येलो कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। राइट। टर्मरिक, curry contains turmeric. When it came in contact with the base, that is soap, its color changes, yellow color changes to reddish brown. After that, when it is again washed with plenty of water, then it again becomes yellow, yellow। तो after that फिर से वो again तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आता, मतलब बेस जो है खत्म हो जाता है। बेस क्योंकि बार बार आप वाटर से उसको वॉश करेंगे, तो वहां पे जो वॉश करेंगे तो जो सॉप का इफेक्ट है, जो सॉप होगा वो खत्म हो जाएगा और फिर से येलो हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के नाम, जो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल फथेलिन भी जो एसिड और बेस को टेस्ट करता है। तो ये भी हमारा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपने यहाँ पे नोट किया है। फिर हम आते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेसेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स वी यूज सी इन आवर डेली टू डेली लाइफ। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं है। फिर भी थोड़ा सा इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। Lichen is a plant belonging to the division Anthellophyta, is common used as a indicator। ऐसे तो ये एक ऑरेंज पार्ट है जो नॉर्मली कलर में नहीं होता, मतलब सिलेबस में नहीं होता, फिर भी मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ। सर ये याद करना है? नहीं नहीं याद नहीं। थैलोफाइटा भी यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज किया है जो एसिडिक और बेसिक, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे गेरानियम एंड क्या है, पिटूनिया एंड हाइड्रेनी, हाँ हाइड्रेंजी, ये सब कुछ दिए गए हैं। इसमें कैबेज लिव्स, रेड कैबेज लिव्स भी इंडिकेटर में यूज करते हैं, टर्मरिक यूज करते हैं, एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं, ये सब यूज हो सकते हैं। यहाँ पे जो एक्टिविटी का पार्ट है, हम उन चीजों पे भी ध्यान नहीं देंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा कुछ नाम बता देता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेम ऑफ सम एसिड। सो फर्स्ट नेम ऑफ द एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हिच वन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, That is HCl. Next one acid is sulfuric acid, H2SO4. Third one acid is nitric acid, HNO3. Next is acetic acid, CH3COOH. These four are acid. तो ये चारों एसिड के नाम आप लिख लो एंड यू टेल अगेन, यू नरेट इट। HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid,
HNO3, nitric acid, and acetic acid, CH3COOH. COOH, right. Already you should know that any substance which contains hydrogen ion, that is acid, and another substance that called hydride is OH, and that contains base. Right. Hydride containing molecule is base. So base is sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide. Sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide. Name it, write it. So all hydroxides are bases. Yes. A second, they contain hydroxide ions or hydride ions? हाइड्राइड सिर्फ हाइड्रोजन को बताता है ना, हाइड्राइड बोलेंगे। अगर सिर्फ H है तो हाइड्राइड है, और OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। हाँ, so आप यहाँ पे hydroxide. देखिए क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है ना, ऊपर देख रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड तो नहीं है। Right. अगर सिंगल H होता है तो हाइड्राइड होता है, और OH हो जाता है तो हाइड्रोक्साइड हो जाता है। Right. अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे जो व्हाट हैज चेंजेस इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, फिनोल फथेलिन मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन टेकन। ये तो सिंपल सा है कि अगर मैं रेड लिटमस के ऊपर ये सब कुछ डालूंगा तो मुझे पता है रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू विद द बेस, एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड विद द एसिड। Right. तो ये तो मुझे बिकॉज इंडिकेटर्स, तो लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर, फिनोल फथेलिन इज ए इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इज ए इंडिकेटर, टर्मरिक इज ए इंडिकेटर, रेड कैबेज इज ए इंडिकेटर। यहाँ पे लिखा है दिस इंडिकेटर्स टेल्स अस व्हेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक बेसिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। These are called olfactory indicators. Olfactory indicators. Which order changes? Acidic or basic? Order, not color. Order change हो जाता है, smell change हो जाता है। तो जो ऑर्डर चेंज कर देता है वैसे इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? Olfactory. Olfactory indicators. यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं करेंगे, बट यहाँ पे कुछ देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। टेक सम फाइन चॉप्ड अनियंस इन ए प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth and tie up with the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for the acid and base. Take 2 of these cloths and check their odor. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on each strip and few drops of the dilute sodium hydroxide solution on the it. तो यहाँ पे अनियन को यूज किया गया। अनियन को आप समझ रहे हैं क्या किया गया, इन्होंने एक प्लास्टिक बैग में एक फाइन चॉप्ड अनियंस को डाल दिया गया, उसके साथ कुछ क्लीन क्लॉथ को डाल दिया गया, उसको टाइटली पैक करके फ्रिज में ओवरनाइट छोड़ दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट डे उस क्लॉथ्स को बाहर लाते हैं और उस क्लॉथ्स बिकम्स इंडिकेटर एंड दैट इज यूज्ड टू टेस्ट एसिड और बेस। पुटिंग द एसिड और बेस their order changes. ठीक है, Right. हाँ। फिर यहाँ पे फिर इसने नेक्स्ट क्या कहा कि रिंज द बोथ स्ट्रिप्स विद द वाटर, अगेन चेक देयर ऑर्डर, नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज, बट ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल लिखा, टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, चेक देयर ऑर्डर। ठीक से, तो पहले यहाँ पे हमने एक अनियन के साथ किया, नाउ वनीला
वनीला के साथ वनीला एसेंस मार्केट में मिलता है ना, वनीला एसेंस कुछ लिक्विड टाइप की आती है जो हम केक वगैरह बनाने में यूज करते हैं। एंड क्लोव ऑयल यू अंडरस्टैंड, हाँ जी, लौंग का तेल बोलते हैं जिसको आप। राइट। हाँ, तो उसको भी हम यूज करके और सेम चीजें करते हैं। टेक सम डाइल्यूट HCl एंड 1 test tube dilute sodium hydroxide solution in another, add few drops of dilute vanilla essence to both test tube and check order once again and record change in order if any. Similarly, test the change in the order of the clove with the dilute HCl, dilute this. तो यहाँ फिर से रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन करके हम चीजें को करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैं क्या करता हूँ उसका क्या आता है, इट इज नॉट इन पार्ट ऑफ सिलेबस, बट वनीला, अनियन, क्लोव, दिस can be used as olfactory indicators. Right. So you have to write vanilla, onion, clove. On the basis of their order. Have you written? Yes. Again, what is olfactory indicators? They tell if the substance is acidic or basic through odor. Through order. And which one is olfactory indicators? Clove oil, onion, and vanilla essence. Okay. Now, note that metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and forms compound called salt. Already you know acid plus metal equal to salt plus hydrogen gas. Right. Acid plus metal equal to salt plus हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं HCl प्लस सोडियम। सिंपल एग्जांपल, HCl is acid, sodium is a metal, it becomes sodium chloride and hydrogen. मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ HCl ठीक है। तो आपने ये भी यहाँ पे चीजें को देख लिया है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज नेक्स्ट सोडियम के साथ जो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी रिएक्शन करना है। यहाँ पे पहले हमने मेटल का की एसिड का रिएक्शन किया, नाउ बेस का रिएक्शन कर रहे हैं। बेस का रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, sodium hydroxide is a base, it's react with zinc that is metal, it forms sodium zincate Na2ZnO2 zincate plus hydrogen, write it. Have you written? One second.
हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स? तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो HCO3 लग जाता है। तो यहाँ आपको फाइनली मिलता क्या है? मिलता है यहाँ पे ये है कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मिल रहा है NaCO3 प्लस आपको मिल रहा है HCl, तो बिकम्स इट सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज पर रहा है। तो आपको यहाँ पूरा ध्यान रखना है कि ये क्या क्या चीज बनना है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है हाइड्रो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फिर से अगेन दोबारा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ, तो NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है। ठीक है। राइट। फिर दूसरा रिएक्शन यहाँ पे कैल्शियम, अगर कार्बन डाइऑक्साइड से पास होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। सेकेंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट है ही। बेसिक मतलब यहाँ पे क्या है वो देखिए, अभी आपने कहा कि रिएक्शन ऑफ द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट, एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर? कैसे रिएक्शन करता है एसिड और बेस? ये तो पहले से पता है, ये तो कॉमन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। Um, okay. With metals, uh, okay. So when an acid react, hello. यस, सुन रहा हूं मैं। When an acid reacts with a metal, the metal displaces the hydrogen ions. Ion, no. Metal displaces the hydrogen atoms, and the hydrogen and no releases hydrogen gas and forms salt. यस, आफ्टर दैट? The same happens with the base, but no salt is formed, only hydrogen. ठीक है। Okay, then moving on to metal carbonates and hydrogen carbonates. Mm, the sorry, metal. Crystallization reaction takes place. Hmm. So bases and acids give salt and water. राइट। एग्जाम्पल? Sodium hydroxide and sodium hydroxide and sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base plus HCl, hydrochloric acid, Hydroxide equal to chloride. sodium chloride plus water, H2O. Right. Then did we do हमने अभी metallic oxides करे थे?
मेटालिक ऑक्साइड क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। नहीं नहीं, अभी कर रहे थे ना। हाँ करे थे मेटल ऑक्साइड, अभी नॉन मेटलिक ऑक्साइड का एक एग्जांपल लेना था। Metallic oxides and acids form salt and water. ठीक है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट एंड वाटर हुआ। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड। कार्बन इज नॉन मेटल और ऑक्साइड हो गया तो नॉन मेटल। Right. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस ऑल बेस हैव इन कॉमन। कॉमन में कहता है कि ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटल्स। जितनी बार रिएक्शन हुआ है तो हाइड्रोजन मतलब मेटल एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन जो है वो निकलता है, कॉमन चीजें है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया गया है, बहुत ज्यादा हमारा यूज नहीं है फिर भी हम इसको थोड़ा देख सकते हैं। लिखा है बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन do not conduct electricity. Growing glowing of bulb indicates that there is a flow of electric charge through the solution. Electric current carried through acid solution by ions. क्या होता है कि एसिड के आयंस बन जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। एसिड्स के आयन बन जाते हैं, जैसे कि मान लो HCl है तो यहां H+ और Cl- हो जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बन जाते हैं और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बन जाते हैं यही आयंस आगे जाके ये फ्लो करने लगते हैं। तो जब इसके इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एनोड कैथोड फ्लो पुट करते हैं, तो वहाँ आयंस के फ्लो से, आयंस के फ्लो का मतलब चार्ज का फ्लो और चार्ज का फ्लो का मतलब करंट हो जाता है। शायद आपको याद है कि मैंने सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको चैप्टर शुरू किया था। Sorry. आपको सबसे पहला चैप्टर जो फिजिक्स में करंट ही पढ़ाया था ना। नहीं सर। अच्छा, आपको नहीं, किसी और को Light. पढ़ाया। तो वहां पे यही चीज है कि वो चीज शो करता है व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ये भी अभी हम लेते हैं। कुछ यहाँ पे रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि HCl वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O Cl- पॉजिटिव निगेटिव बना रहा है। फिर यहाँ पे हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन H3O को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, बना रहा है। फिर यहाँ पे बता रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के थ्रू पास होकर सोडियम अलग और ये हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोक्साइड आयन अलग अलग हो रहा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन का कुछ पार्ट, रिएक्शन का कुछ पार्ट एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट ये है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम अलग, हाइड्रोजन अलग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम अलग, हाइड्रोक्साइड अलग हो रहा है, मींस दे आर स्प्लिटिंग। व्हाट हैपेंस, Splitting. स्प्लिटिंग। KOH आपके सामने रिएक्शन आ रहा होगा, KOH, K पॉजिटिव अलग हो गया, Right. OH निगेटिव अलग हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम अलग, हाइड्रोक्साइड अलग। लिखता है बेसिस जेनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस, बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। ये तो मालूम होगा। अगेन ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर,
Correct. but the bases which dissolve in water are alkali. Correct. They are soppy to touch, पता है, Hmm. bitter पता है, and Right. corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm. ठीक है, टच नहीं करना, टेस्ट नहीं करना बेस को। एक और रिएक्शन आपको लिखना होगा, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे जो आपने HCl प्लस NaOH करके जो लिखा है वही चीज को इन्होंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ जी सर, ओके। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं एक डायग्राम बनाया हुआ है रेड कलर का, व्हाट डज इट मीन? रेड कलर का मतलब कि डोंट टच देम। यस, जो डोंट टच, डोंट लिखा हुआ है ना वार्निंग साइन, वहां पे लिख रहा है कि एक लिक्विड ऊपर से गिर रहा है और हाथ के ऊपर पड़ रहा है फिंगर पे, और फिंगर वहां से कट रहा है, देख रहे हैं? फिंगर कटने का साइन दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे नीचे एक रॉड है, रॉड भी उसके अंदर कट रहा है, इवन मेल्ट कर रहा है, यू कैन से डिजॉल्व हो रहा है। राइट। हाँ, तो कहने का मतलब एसिड और बेस को नहीं छूना, ठीक है? मतलब छूना का है, बट उसको एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपर्ट टीचर के अंडर गाइडेंस में। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हैं जो केयरफुल वाली चीजें हैं वो याद करनी है, अभी मैं उसको बताता हूँ क्या है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic, and exothermic means heat producing. तो वाटर में अगर एसिड और बेस को मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, और बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और हम अलर्ट नहीं है तो उस हीट के इफेक्ट से बर्निंग हो सकती है, एक्स्ट्रा स्मोकी फ्यूमिंग आ सकती है, हमारे नाकों में जा सकती है, वो अचानक सडन एक पफ टाउन के साथ सडन एक हाई स्टीम स्मोक हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है, दैट कॉजेज अस हार्म, बर्निंग, इवन कटिंग ऑफ, जो भी यहाँ जो लिख रहा है सब कुछ हो सकता है। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक acid or sulfuric acid with water. Even when we mix that in water, we must care. The acid must always be added slowly to water with constant tearing. एक चीज ध्यान रखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना, वाटर में एसिड डालना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Right. Do not put acids in water. No. Do not put water in acid. Put acid in water. एक डिफरेंस क्या होती है? हाँ? डिफरेंस क्या होती है? बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत है। एसिड में पानी नहीं डालना, पानी में एसिड डालना, मतलब अलग अलग चीज है। एसिड वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, आप उसमें से थोड़ा एसिड डालना है, बिल्कुल थोड़ा स्लोली डालना है, फिर उसको स्टीयरिंग करना है, कांस्टेंट स्टीयरिंग, फिर वो डिसॉल्व होता है, फिर थोड़ा सा डालना, फिर वो डिसॉल्व होता है, फिर थोड़ा सा डालना। अगर ज्यादा डाल देंगे, स्टीयरिंग नहीं होंगे, दैट sudden reaction will start, exothermic will reaction start, it will takes no time to produce a large amount of heat and fuming and puff sound जो भी है उसका एक ब्रस्टिंग टाइप की साउंड अचानक होगी, और अचानक हीट स्प्लैश, और दिख रहा है ना, स्प्लैश एंड कॉज बर्न, साउंड तो छोड़ दो, लेकिन स्प्लैश आउट, अचानक वो गर्म हीट वो बाहर की तरफ छलक के बाहर आ सकती है, वो एसिड बाहर आ सकती है, that generate may cause mixture of splash out and cause burns. Glass container may also break, क्या लिख रहा है, ग्लास कंटेनर में also break
ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि व्हाट हैपेंस, व्हाई डू नॉट वी पुट वाटर into acid, why we put acid into water? Understand? देखो एसिड का मतलब, एसिड में आप वाटर डालते हैं, इसका मतलब एसिड की क्वांटिटी ऑलरेडी लार्ज है, उसमें से कुछ वाटर डालते हैं, उसमें से कुछ वाटर डालते हैं, तो क्या होगा कि वो अचानक एसिड जो है, उस पूरे वाटर के अंदर एसिड ज्यादा क्वांटिटी में है, दे विल नॉट न्यूट्रलाइज, इवन दे रिएक्ट मोर विगरसली। लेकिन अगर ज्यादा पानी में आपने थोड़ा सा एसिड डाला तो एसिड रिएक्शन जरूर करेगा, बट एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा ना, तो वो उसके इफेक्ट को उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी वाटर को तो रिएक्ट करेगा, बट अदर अमाउंट ऑफ वाटर उसको डिसॉल्व कर जाएगा, उसके इफेक्ट को मतलब रिड्यूस कर देगा। राइट। देखो इसमें वाटर ज्यादा कुछ नहीं करता, करता सब कुछ एसिड ही है। तो अगर एक जगह एसिड बहुत ज्यादा है तो आप समझ रहे हैं वहां पे दिक्कत होगी। अब मैं एक दूसरी चीज, तो यहाँ पे एसिड जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है, तो एसिड में इसलिए वार्निंग साइन सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ और भी आप चीज देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आउट फॉर द वार्निंग साइन, क्या मतलब क्या है, कैन on the can of concentrated sulfuric acid. What is meaning of concentrated? Concentrated. Think. Mixing of an acid or base with water result in decrease in concentration of ions hydronium oblique hydride per unit volume. Such a process is called dilution. Dilution का मतलब mixing of water होता है. Acid or base is said to be diluted when water is mixed. और concentrated का मतलब pure form, and it is pure form, it is such pure, its purity is so that it cannot be used in 100% pure form. To use it, we have to mix it, we have to dilute it. For example, ले लो, we eat salt, we eat sugar, yes. लेकिन क्या मैं शुगर को डायरेक्ट खाता हूं या सॉल्ट को? नहीं। No. Sugar is very concentrated, salt is very concentrated. If we कोई हमने खाना बनाते हैं, किसी तरह का करी बनाते हैं, एनी टाइप जिसमें सॉल्ट की जरूरत होती है, एनी टाइप ऑफ जो हम सूप वेजिटेबल या हम, तो क्या होता है कि 4-5-6 पर्सन के लिए बनता है, तो उसमें 1 स्पून 2 स्पून इज इनफ। क्योंकि डायरेक्ट हम इवन अगर सॉल्ट कम भी होगा ना तो हम बहुत थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा सा डालते हैं, बिल्कुल सॉल्ट नहीं है तो 1 स्पून इज इनफ फॉर 2-3-4 पर्सन, बिकॉज इट इज कंसंट्रेटेड वर्जन, हम डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसी तरह के एसिड होती है, हम एसिड को कई बार हम घरों में किसी चीज को, फर्श को सफाई करने के लिए एसिड यूज करते हैं, बट पूरी एसिड को डायरेक्ट नहीं डाल सकते, वो इतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है कि जो टाइल्स पत्थर है उसको भी खराब कर सकती है। वी हैव टू मिक्स दैट एसिड विथ वाटर, देन आफ्टर दैट डाइल्यूटेड करते हैं, तो वो एक नॉर्मल यूज के लिए होता है, वेरी कंसंट्रेटेड, वेरी प्योर। हाँ, तो वो चीज है। यहाँ पे क्या लिखा है, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। यहाँ पे कुछ पॉइंट आने वाले हैं। वी हैव आल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड एसिड इन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन and hydrogen ions in solution. Can we quantitatively find amount of these ions present in the solution? Can we judge how strong given base or acid, कितना base strong और base हो सकते हैं? Can we do by making use of universal indicator का use कर सकते हैं क्या? तो universal indicator उसकी different properties, color show करेगा। तो वी स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब है पोटेंज, पोटेंज ये जर्मन का वर्ड है, और पीएच मींस पावर, पावर ऑफ एसिड। अभी हमने क्या कहा, एसिड कहा, फिर हमने बेस कहा। तो एसिड कितनी इफेक्टिव है, बेस कितनी इफेक्टिव है, ये बात है। तो उसमें पीएच एक पावर है। जैसे कि मैं अभी आपसे कहूं कि लेमन जूस है, वो एसिड है, बट लेमन जूस तो हम खा लेते हैं, खा राइट। लेते हैं ना, खा लेते हैं। हम्म। क्या लेमन जूस हमारे स्किन पे पड़ जाता है तो बर्निंग होगी क्या? हाँ जी सर, नहीं नहीं नहीं, कट पे होती है नहीं लेकिन। होती, कट पे थोड़ी सी हो सकती है, कट पे होगी। और उसके बाद मैं एक एसिड है, आपको मालूम है कि टोमेटो में भी थोड़ी एसिड होती है, एप्पल में भी थोड़ी एसिड होती है, ऑरेंज में भी एसिड होती है, हाँ जी सर, टाटा रेट। होती है, एसिड होती है। हाँ लेकिन जी। हमने ये पढ़ा है कि एंट जो है, एंट या हनी बी होती है, ये अगर हमें काटता है तो वो एसिड छोड़ता है, सुनने में आता है। हाँ जी। और वो सुनने में आता है, हमारे बॉडी के अंदर वही एसिड चला जाता है तो बहुत दर्द होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता हम्म। है ना। बट वही जो लेमन जूस का अगर हम जाता है तो इतनी पे इरिटेशन नहीं हो सकती, राइट। नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या है कि पावर में डिफरेंट है। हम्म। कुछ एसिड ऐसे होता है कि स्किन के पड़ते स्किन जल जाता है, हम्म। स्किन बाहर आ जाता है। राइट राइट राइट। हाँ, तो वो एसिड कुछ पीएच ऐसे हो, तो वहां पे वही है कि उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर ऑफ एसिडिटी ये कितनी ज्यादा है, पावर ऑफ एसिडिटी। तो इसी के लिए वर्ड यूज किया पीएच, पीएच इज द पावर, पावर ऑफ एसिड, हाउ मच पावरफुल इज द एसिड, कह सकते हैं ना, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एसिड। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू के सामने लिखा हुआ है कि पीएच जीरो इज वेरी एसिडिक, देख रहे हैं आप। राइट। अगर किसी की जीरो होगी तो वेरी एसिडिक, मतलब ये समझो कि स्किन पे पड़ गया, स्किन कट, उसके अंदर अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस मेटल को भी डाल देंगे तो मेटल को मेल्ट कर सकता है, कोरोड कर सकता है। और 14 वेरी अल्कलाइन, 14 is very alkaline. हम्म। pH should be thought of the simply as a number which indicates the acidic or basic nature of the solution. Higher the hydrogen ion, lower pH value. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. pH of the neutral solution is 7. Less than 7 is acidic. राइट। 7 से कम pH स्केल है तो एसिडिक, और 7 से 14 तक है, 14 है तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है इसका मतलब, एंड दैट इज बेसिक। बेसिक से ही अल्कली बनता है, मालूम है ना, हम्म। बेसिक से ही अल्कली बनता है, क्योंकि बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर अल्कली। तो अभी आपने जो अभी जो चीज मैंने बताया कि कितना तक एसिड लेना है, हाईली एसिडिक का मतलब 0 पीएच वैल्यू, 14 का मतलब वेरी अल्कलाइन, 0 to 7 एसिडिक है, ये चीज लिख लीजिए। और उसके साथ साथ एक नीचे जो डायग्राम बनाया हुआ है आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है यहाँ पे एसिड इंक्रीजिंग, 7 से कम हो रहा है, 7 से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एसिड वहां पे देख रहे हैं कि आप डिक्रीज हो रहा है एसिड की वैल्यू, और हाइड्रोजन की वैल्यू कम हो रहा है, और दूसरे साइड में हाइड्रोक्साइड बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं ब्लू कलर का एक शेडो शेडो बना रखा है यहाँ पे। हम्म। तो ये पूरी डायग्राम को आप अभी बना लेंगे, ये ड्रॉइंग कर लीजिए, तो लिख लीजिए, और उसके बाद बोलेंगे भी आप। टेम्परेचर इज द स्केल where we find out lower temperature and higher temperature. Similarly, in a liquid, to determine its basic or acidic property, a number, it is expressed in number, and that number is called pH value. Lower is the pH value, it's acidic, and higher is the pH value, it is basic. ओके ओके। जैसे कि हम 20-25 डिग्री सेल्सियस में हमारा रूम टेम्परेचर है, नॉर्मली हम कंफर्टेबल फील करते हैं, टेम्परेचर उससे ज्यादा हो जाता है, 25-30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो गर्मी लगने लगता है, 45-46 में हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसी तरीके से पीएच की वैल्यू मतलब ज्यादा हो जाती है,
तो मतलब वो बेसिक बिहेवियर हो जाता है जो 8 9 10 11 12 13 14, हमारे लिए वो मतलब अच्छा नहीं है, मतलब हम उसको वैसी चीजें को हमारा बॉडी नहीं ले सकता। जैसे टेम्परेचर हमारा कम होने लगता है 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, हम कांपने लगते हैं। गर्मी का उल्टा चल जाता है, एक साइड में गर्मी है तो उल्टा एक साइड में चला जाता है, ठंडा में चले जाते हैं। उसी तरीके से 7 से सब कम टेम्परेचर हो जाता है तो एसिडिक बिहेवियर हो जाता है, और वो जितना कम होते होते जीरो पे जाएगा तो बहुत एसिडिक हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है। जैसे बर्फ, और बर्फ की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है आइस की, और बॉइलिंग वाटर की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, अपोजिट। उसी तरीके से 14 वाला जो पीएच की वैल्यू है और 0 वाला जो पीएच की वैल्यू है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, जैसे कि मान लो कि न हम बर्फ को खा सकते, न हम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को पी सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी हमारा बहुत ठंडा होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी भी बहुत गर्म होगा, दो भी कोई भी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं दोनों को मिला दूं, क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो कुछ ऐसी चीजें बनेगी जो हमारे आसपास में बन सकती है, हो सकता है ना। उसी तरीके से एसिडिक और बेस को मिलाने से कुछ आसपास की चीजें की बनती है, और आसपास की चीजें को हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। हमारा बॉडी 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। मुझे लगता है अब थोड़ा क्लियर ज्यादा हुआ होगा। अब हाँ, ओके, नाउ आई कैन एक्सप्लेन। हम्म। बढ़े आगे। हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें दिया हुआ है, पीएच पे कलर वलर चेक करो, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। तो सलेबा बिफोर मिल, आफ्टर मिल, लेमन जूस, एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफी, इन सब में एसिड बेस होता है। टोमेटो जूस, टेप वाटर, वन सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl। यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस 1.2 बहुत ज्यादा होता है। लेमन जूस 2.2, प्योर ब्लड वाटर 7.4 हमारा बॉडी का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा हो गया। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो पहले बता चुके हैं। If we take hydrochloric acid and acetic acid same concentration, say 1 molar, then this produces different amount of hydrogen ions. Acid that gives rise to more hydrogen ions are said to a strong base, and acid ये सब बता रहा है weak acid क्या है। Sir, do bases also produce some kind of hydrogen ions? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता बिल्कुल। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है। पहला, our are plants and animal pH sensitive? Yes, animal plant are pH sensitive. Our body works within pH range of 7 to 7.8. Living organism can survive only in narrow pH range. pH pH range. When pH of rainwater is less than 5.6, it is acidic rain. Acid rain flows into river. It lowers the pH of water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. अगर pH 5.6 से कम होता है, हमारा बॉडी को 7 और 7.8 के बीच में हमारा बॉडी काम करता है। अगर पीएच 7 कितना? पीएच रेंज 7 न्यूट्रल है, मालूम है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, 7 इज न्यूट्रल। तो हमारा बॉडी थोड़ा सा बेसिक की तरफ है, हमारा बॉडी इसी में कंफर्टेबल है। एसिडिक नहीं चाहिए बॉडी को, बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता, आदमी बीमार पड़ सकता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है।
कहता है कि अगर 5.6 कम, 5.6 से अगर कम की एसिड रेन किसी तरीके से आती है तो क्या करता है? वो कहता है कि अगर रिवर में जाता है या ओशियन में जाता है तो वहां के वाटर को एसिडिक कर देता है, तो उसमें जो रहने वाले एनिमल्स हैं, राइट। फिश और जो है एनिमल्स, वो मतलब मरने लगते हैं। सीधी सीधी बात ये समझ लो। यहाँ पे एक प्लानेट के बारे में बता रहा है, एसिड्स इन अदर प्लानेट, एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ व्हाइट एंड वेलिस क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट इन दिस प्लेस प्लानेट? बिल्कुल नहीं। कैसे? एसिड में कैसे आदमी रहेगा? एटमॉस्फेयर अगर एसिड का बन जाए तो आदमी तो मर जाएगा। राइट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? क्या है? हमें तो पीएच कितनी है बैकवर्ड की प्लांट का पता नहीं, तो नहीं सॉइल सर। का बैकवर्ड कितना पता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर हमारे को एक पर्टिकुलर पीएच पे हम जिंदा रहते हैं, पानी में रहने वाला जितने भी एनिमल्स है एक पर्टिकुलर पीएच पे जिंदा रहते हैं, तो प्लानेट जितने भी प्लांट है, ट्री है, इसकी भी एक सर्टेन पीएच होना चाहिए। अगर उसमें पीएच कम होगी तो प्लांट में जो प्लांट को वाटर मिलेगी वो कम पीएच वाली, मतलब एसिडिक वाटर मिलेगी, और वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो सॉइल टेस्टिंग होती है कई एक बार, फार्मर की कोई कोई चीज सॉइल टेस्टिंग होती है, तो पीएच चेंज किया जाता है। अगर ज्यादा पीएच हो तो वहां पे फिर उसके हिसाब से मेन्योर डाला जाता है कि उसके पीएच को लोअर करे। इन अनदर वे यू कैन से दैट इफ इट इज एसिडिक, उसकी सॉइल एसिडिक हो गई है, तो उसमें बेस की क्वांटिटी ज्यादा डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, देन वी पुट सीड्स एंड ग्रो प्लांट्स। राइट। सर आप एक बार और रिपीट कर सकते हो प्लीज? कौन सॉइल सी? के लिए। सॉइल सॉइल के लिए के लिए। बहुत सिंपल सी है। सॉइल के अंदर अगर पीएच बहुत कम होगी, न्यूट्रल से कम होगी, तो जो हम्म। प्लांट लगाएंगे तो आपको पढ़े होंगे कि प्लांट जो है मिनरल्स एंड वाटर उसी सॉइल से लेता है, सॉइल में देंगे। तो सॉइल में अगर पीएच ज्यादा होगी, कम होगी, तो वो वाटर में मिक्स हो जाएगी, सॉइल का इफेक्ट होगा, उसके मिनरल्स में हो जाएंगे, तो उसके रूट में, उसके शूट में, उसके लिव्स में, स्टेम में वो कम पीएच वाला मतलब एसिडिक वाटर जाएगा। और एसिडिक वाटर को प्लांट जो है, जैसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो प्लांट्स विल डाई। इट So विल, it needs basic or it needs neutral? इट्स नीड्स न्यूट्रल, न्यूट्रल चाहिए। Okay, so all of us need neutral, living यस, being. न्यूट्रल उसके आसपास चाहिए। थोड़ी बहुत पॉइंट में फर्क पड़ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर मान लो एसिडिक है, हमें श्योर है एसिडिक है, तब भी मुझे प्लांट लगाना है, तो उसमें जो खाद डालते हैं उसके लिए कोई जो, जिससे कि प्लांट ग्रो करे, उसके लिए जो फूड आइटम डालते हैं, कहते हैं कि इसमें खाद डाल दो। आपके यहाँ, मेरे यहाँ वो क्या बोलते हैं, वो फ्लावर वाले आते हैं ना, गार्डनर, तो गार्डनर हम बालकोनी में कहीं पे प्लांट लगा लेते हैं छत पे, तो कहते हैं कि इसमें खाद डाल दो, खाद डाल दो। वो जो खाद होते हैं ना, वो उस टाइप से खाद डालना चाहिए जो बेसिक हो। अगर एसिडिक हमारा सॉइल है तो बेसिक खाद डालने से उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा तो प्लांट उसमें ग्रो कर पाएगा। क्लियर? हाँ जी सर। फिर नीचे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या कहता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा पेट ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, स्टोमक, खाने को पचाने के लिए, लेकिन खाने के पचाने के लिए। लेकिन कई एक बार क्या है कि हम बार बार खाते हैं या ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसको पचाने के लिए पेट में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पेट को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो ज्यादा छोड़ना पड़ता है, और ज्यादा छूट जाता है तो उससे बॉडी में एसिड की क्वांटिटी पेट में बढ़ जाती है, और पेट में पेन, स्टोमक में इरिटेशन होने लगता है, पेन होने लगता है। फिर हम तो मतलब परेशान हो जाते हैं, और उसको ठीक करने के लिए फिर हम कुछ बेस जैसी चीज दवा खोजते हैं, कौन सी दवा खाऊं कि पेट में गैस कम हो जाए, एसिड कम हो जाए। तो जो दवा दी जाती है, वो दवा का जो मेन पार्ट होता है एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब यह है कि एसिड का एंटी वाला पार्ट जो बेस होगा। और वो बेस में भी क्या होता है, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक माइल्ड बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। तो माइल्ड बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की दवा खाते हैं, जो मिल्क ऑफ हम्म। मैग्नीशिया है, और उससे हमारे बॉडी में, पेट में, स्टोमक में जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर न्यूट्रल हो जाता है, देन
we becomes normal. Our irritation and pain decreases. समझ में आ रहा है? मैंने एक सेकेंड, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, है ना? नहीं सर. सो okay, indigestion. Okay, 1 minute. So okay, listen, sorry. Overproduction of hydrochloric acid जब हो जाता है, when does that happen? Overeating ओवर or ईटिंग की वजह, कोई भी मतलब देखो रीजन में ओवर ईटिंग नहीं कहेंगे, कोई भी रीजन है, रीजन ओवर ईटिंग हो सकता है, बार बार खाना खाना हो सकता है, कोई ऐसी चीजें हमने खा लिया, मतलब देखो, देखो बॉडी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमने खाना खाएंगे, मान लो एक रोटी खाया, लेट इट, तो बॉडी को पता चलता है एक रोटी पचाने के लिए इतना एसिड चाहिए, तो इतना एसिड पेट में छोड़ देता है वो, ठीक है। okay. 3 रोटी खा लिया तो 3 के बराबर एसिड छोड़ देगा। या हमने एक और चीज है, एक नई चीज है, लोग कहते हैं कि बार बार खाना मत खाओ, जैसे अभी हमने खाना खाया, एसिड उसने छोड़ दिया, आधे एक मिनट फिर से खाना खाया, तो बॉडी फिर से एसिड छोड़ेगा उसके लिए, फिर खाया, फिर से एसिड छोड़ दिया गया, तो उसको एसिड जितना छोड़ना था ना, एक ही बार से काम चल सकता, तब 3 बार एसिड हो गया, तो एसिड हो गया ज्यादा। अब वो एसिड की वजह से दर्द शुरू हो जाएगा, पेट में पेन होने लगेगा, पेट में मरोड़ होने लगेगा, सुना होगा, हाँ जी. है ना? अब वो क्या हम्म. करे, एसिड तो निकल नहीं सकता, गैस होने लगेगा, फिर या तो बाहर निकल जाए एसिड वोमिटिंग से, हम्म. तब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर नहीं निकला तो क्या, तब दिक्कत है, तब तक पेट में दर्द दर्द चलता रहेगा। तो उसको फिर पेट में एंटा एसिड हम खाएंगे, बेस खाएंगे, तो एसिड तो है ही, बेस हमने डाल दिया ऊपर से पेट में, तो अपना रिएक्शन करके वो दोनों ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर. यही चीज है। क्या रुकना है या आगे बढ़ाऊं? नहीं सर, ठीक है. पीएच चेंज एज कॉज ऑफ डू टूथ डीके, कहता है पीएच चेंज होने की दांत भी खराब हो जाता है। टूथ डीके, दांत खाने खा जाता है, और आजकल तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है। कहता है हमारे जो माउथ की पीएच अगर 5.5 से कम होती है, हम्म. तो हमारा दांत जो बना हुआ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फोरेट से बना हुआ है। ये काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। इसकी पीएच वैल्यू अगर 5.5 से जब तक नीचे नहीं आएगी, तो ये 5.5 से नीचे आएगी तो दांत खराब होना शुरू हो जाएगा। कहता है कि जो बैक्टीरिया हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना का कुछ पार्टिकल दांतों में लगा रह जाता है, या शुगर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, तो दांतों में लगा रह जाता है। थोड़ी देर के बाद उसमें आप सिंपल सिंपल तो की एक सरन टाइप होती है, जो मुंह के अंदर पेट दांतों में ही होती रहती है 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद। उसके बाद जो भी बैक्टीरिया है वो एसिड बनने लगता है, और एसिड 5.5 से नीचे आने लगता है। अब जो 5.5 नीचे का जो फूड का आइटम है, या शुगर है या मिल्क है, जो दांतों में लगा हुआ है, वो 5.5 से जो ही नीचे आता है, तो वो जो एसिड है, वो एसिड हमारे दांतों के एनामेल को खराब करने लगता है, कोरोड करने लगता है, तोड़ने लगता है, आप ऐसे समझ लो, डिग्रेडेशन करने लगता है। तो धीरे 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 एनामेल को कट कर देता है, दांत टूट जाता है अंदर से, और वो मुझे पता नहीं चलता, फिर बाद में देखते हैं तो दांत धीरे धीरे कट करके वो फिर वो अंदर चला गया, फिर दांतों में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो अंदर जो उसका वेनस है, वेनस की तरफ पहुंच जाता है टूथ होते होते एसिड। तो वहीं पे लिखा है कि इसका कहना है कि आपको दांतों को हर एक खाने, पहले तो ऐसा खाना मत खाओ, और खाना खाने के बाद दांत साफ कर लो, क्योंकि दांत में कुछ ऐसी चीज बचे नहीं, ताकि कोई कोरोजन जैसी कुछ कंडीशन आए, ये कह रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। कैन यू एवर सीन स्टंग बाय हनी बी? बिल्कुल, हनी बी कभी आपको काटा है क्या? सॉरी. हनी बी काटा है आपको? नहीं सर. स्टंगिंग नहीं किया, बहुत दर्द होता है काटने का तो।
बहुत दर्द होता है। कहता है हनी बी लिव्स, हनी बी काटता है ना तो एक छोटी सी पिन टाइप बॉडी में चुभा देता है, स्टिंग, और चुभाते ही उसके साथ एक एसिड हमारे बॉडी में पास हो जाता है, और वो बहुत पेन और इरिटेशन हो जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं। कहता है उसको भी ठीक करने के लिए क्या है कि जिस एरिया में काटता है ना वहां पे आपको एक बेकिंग सोडा यूज करना है। कहता है स्टिंग हेयर नेटल्स लिव इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड डालता है और ज्यादा खराब है। मेथेनोइक एसिड से भी ज्यादा फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटियों के अंदर होता है। ठीक है। Right. फिर यहाँ पे एक नेटल के बारे में बता रखा है कि नेटल एक हर्बी, क्या है, हर्बेसियस प्लांट है, जो अगर उसको हम छू लेते हैं तो वो स्टिंग करता है, उसकी स्टिंग हेयर होते हैं जो हमारे बॉडी में, मतलब क्या कहो, स्टिंग हो जाती है वो भी, और वो भी मिथेनोइक एसिड सेक्रेट करता है और फिर दर्द शुरू हो जाना होगा। बट नेचर के साथ एक अच्छाई बात क्या है ना, नेचर में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उसके आसपास उसका सोल्यूशन भी होता है। तो वहाँ पे एक डॉग प्लांट होता है, तो डॉग प्लांट उसके साइड में होता है, और डॉग प्लांट वो बेसिक होता है, तो डॉग प्लांट को अगर आप करके उसको टच करेंगे तो बेसिक होके तो वह दर्द इरिटेशन को कम हो जाता है। कहता है नेचर की अपनी प्रॉपर्टी है। Mm. जहाँ जहाँ भी एक प्लांट होता है ना, ये नेटल प्लांट, उसके बगल में वो भी प्लांट जरूर होता है, क्योंकि एक इरिटेशन करेगा तो दूसरा ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वाइनेगार में एसिडिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टेमरिंड में टेटरिक एसिड है, टोमेटो में एक्जेलिक एसिड है, सावर मिल्क दही में लैक्टिक एसिड है, लेमन में साइट्रिक एसिड है, एंट एसिड मिथेनोइक एसिड, नेटलिस्टिंग मिथेनोइक एसिड। चाहे तो सबका नाम लिख सकते हैं। हो गया क्या? हेलो। हाँ जी सर, ठीक है। क्या किया जाए, और भी कराऊं? एक सेकेंड।